हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। और आज हम शुरू करने जा रहे हैं बेस थ्योरम। तो उससे पहले मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी वीडियोस देख चुके होंगे और तब आप बेस थ्योरम पर पहुँचे होंगे। अब अगर डायरेक्ट बेस थ्योरम करेंगे तो आपको बहुत प्रॉब्लम होने वाली है। तो अगर आपने ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो आप पहले पिछली वाली वीडियोस देख लीजिए एक बार, फिर आप बेस थ्योरम देखिएगा तो बिल्कुल समझ में आएगी। तो बच्चों शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपका एक कंसेप्ट बिल्ड करता हूँ कि बेस थ्योरम हम क्यों पढ़ते हैं, क्या है बेस थ्योरम के पीछे का रीज़न क्या है। देखो, आपने अभी पिछली वीडियो में देखा था, हमने टोटल प्रोबेबिलिटी किया। टोटल प्रोबेबिलिटी का एक एग्जांपल लेते हैं। टोटल प्रोबेबिलिटी में एक बैग B1 था, एक बैग B2 था। इनमें से आप एक बैग सेलेक्ट करते हो तो हो सकता है वो बैग B1 चला जाए। E1 इज इक्वल टू बैग 1 सेलेक्टेड। E2 हो सकता है आपका बैग 2 सेलेक्ट हो जाए, बैग 2 selected. Then if you in your bag 1 you have 5 white balls and 2 red balls, and it has 3 white and 5 red balls, then what will happen? One ball will be drawn from the bags. Like if you have selected bag 1, E1 is bag 1 is selected, so you got bag 1 which has 5 white and 2 red balls. Then if you have selected 3 white and 5 red balls in bag 2, then final event is A. So if B1 is selected or B2 is selected, then you will select a ball that may be like white ball. For example, you can take it white ball is drawn. In final draw, white ball is drawn. So in total probability, you have to find this probability of A. And how you find it? Probability of A is probability of E1 multiplied probability of A when E1 has happened plus probability of E2 probability of A when E2 has happened. And you can get probability of A when E1 has occurred like this. So probability of E1 is means you have 2 bags and you have to select one. So what is the probability? 1 by 2. Similarly, probability of E2 is 1 by 2. Here probability of A when E1 is selected. So you have bag 1 and you have to find probability of A. What is A? White ball drawn. So what will be the probability? 5 white balls, total 7. Similarly, here probability of A when E2 has occurred, then what it will be? 3 white balls are there and total 8. So now you can find this total probability. Up to that you have done. Now what will be the question next? Next, he will give you that A has occurred. This A event has occurred means white ball has been drawn. This event has occurred, and he will ask find the probability that bag 1 was selected. Or he may also ask this question like that, find the probability that the white ball is drawn from bag 1. So what is this? You have to find the probability of even when A has occurred. And what is this? Mathematically, this is conditional probability. You can write it like this. You have to find probability of even when A has occurred. You got it or not? उम्मीद करता हूँ ये एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ मैं। आपको क्या निकालना है, बेस थ्योरम क्या बोलती है। आप रिवर्स जाइए, जैसे इधर आपके पास A था,
ये ए है, और बेस थ्योरम क्या बोलती है, ए हो चुका है, दिस ए हैज़ हैपेंड, दिस ए हैज़ हैपेंड. Now find the probability of white ball from bag 1. So you have to find the probability of this bag 1 yani event E1 when A has occurred. And how to write it? Mathematically you will write it probability of E1 when A has occurred like this. And you already know how to find the conditional probability. You know the formula. What is that formula? That is probability of E1 intersection A divided by probability of A. Okay. So in Bayes theorem you are going to find probability of E1 when A has occurred. This is also known as this is your result, final result, and this is your cause. So probability so Bayes theorem is also known as probability of cause, means this is the cause for this result. So find the probability of cause when result has happened. So probability of E1 when A has happened. So let us see the theorem, and we can prove it also. This is EI when A has occurred. What is EI? You see बच्चों इधर E1 E2 अप टू सोन बहुत सारी इवेंट्स आप ले सकते हो. देन एक अलग इवेंट लेंगे हम A, जो डिपेंड करेगी इन सारी इवेंट्स पे. दिस इज योर A इन येलो कलर. ओके, एंड दिस डिपेंड्स ऑन ऑल EIs, like A is dependent on E1 E2 En, and you have done it in total probability, that when you find probability of A, it depends on all E1 E2 En. Now what he is asking in Bayes theorem, find the probability of this E1 when A has occurred, or he may ask like find probability of E2 when A has occurred, or find probability of E3 when A has occurred. He will ask question like that, find probability of E2 when A has occurred, probability of E3 when A has occurred, in this way. So what is this EI? This is like E2 E3, I may be 1 2 3 up to so on n. It is written here. And what is the formula for this? This is very easy. You may feel it like in first instance it may be difficult for you, but I will make it easy for you. Okay, so let us start. हमारे पास अभी हमने जो फॉर्मूला देखा आपका ये वाला, probability of E1 when A has occurred. What is it? By conditional probability E1 intersection A divided by probability of A. Use this formula here. Use this formula. Like probability of EI when A has occurred will be probability of EI intersection A divided by probability of A. Now it's easy, and you know by multiplication theorem probability of A intersection B is equal to probability of A multiply probability of B when A has occurred by multiplication theorem. Use this result here. This will be probability of EI multiply probability of A when EI has occurred, and here probability of A. And in total probability, what is probability of A? You have seen like this. This is probability of A when you have two events E1 and E2, and if you have more than two events, then how you will write it? Probability of A when EI has occurred, this is as it is, this is your P, and
Now probability of A will be probability of E1, then probability of A when E1 has occurred, plus probability of E2, probability of A slash when V2 has occurred, plus up to so on. Probability of, if there are n events, probability of even multiply probability of A when En has occurred. So your probability of A will be this, जो मैंने अभी ये नीचे लिख दिया है. Done. And you can use a small symbol for this big term. These are all symbol of plus, and for plus you can use this summation symbol. How to write it? Above you will write like this. Let I make some space for you. Then probability of EI, probability of A when EI has occurred, it is all as it is. And now below you can write summation P event E. Now you can write J because I, you have used I here. So you will write probability of EJ, probability of A when EJ has occurred. And what is this A? J will vary from 1 to n. J is from 1 to n. You got it? 1 to n. So let us understand some more things about this. In Bayes theorem, what is the statement? Like total probability, you have E1, E2, En, non-empty events, n non-empty events which constitute a partition of sample space S. Like that, these E1, E2, En all are mutually exclusive, or you can say pairwise disjoint, and E1 union E2 union up to so on En, it constitute your sample space S, and this property is known as mutually exhaustive. And then A is any event of non-zero probability, then this is the result for Bayes theorem. How you can find the probability of EI when A has occurred. So there are some important terminology like this E1, E2, En. These events, this E1, E1, En, these are known as hypothesis, and their probability like Pi yani P1, P2, Pen are called priori probability of the hypothesis EI. Like this probability of E1, probability of E2 up to so on, probability of En, these all are priori probabilities. Okay. Now this conditional probability which you have to find, probability of EI when A has occurred, is called posteriori probability of the hypothesis EI. So Bayes theorem is also called the formula for the probability of cause. You have to find the probability of causes which I have said earlier. I think अभी तक आपको कुछ चीज़ें समझ में आई हैं बेसिक सी. अभी हम क्वेश्चन करेंगे तो सब क्लियर हो जाएगा बच्चों. लेट अस सी कि इस क्वेश्चन को हम कैसे हिट करेंगे. You have bag 1 contains 3 red and 4 black balls, while another bag 2 contains 5 red, 6 balls, 6 black balls. One ball is drawn at random from one of the bag. किसी एक बैग से एक बॉल निकाला गया and it is found to be red. Find the probability that it was drawn from bag 2. So basically बच्चों टोटल प्रोबेबिलिटी एंड बेस थ्योरम में एक ही डिफरेंस होगा. टोटल प्रोबेबिलिटी में लास्ट में सिर्फ एक ही प्रोबेबिलिटी निकालने को बोलेगा, गिवन कुछ नहीं होगा. बट यहाँ पे देखो एक चीज़ हो चुकी है, इट इज़ फाउंड टू बी रेड. ये चीज़ हो चुकी है, इट इज़ फाउंड टू बी रेड, एक चीज़ हो गई.
उसके बाद बोलता है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट वाज ड्रॉन फ्रॉम बैग 2। भाई 2 वाले बैग से आई है। तो हम डायग्राम बनाना शुरू करते हैं। इनिशियली यू वर हैविंग 2 बैग्स, bag 1 and bag 2. In bag 1 you have 3 red and 4 black balls, and in bag 2 you have 5 red and 6 black balls. So you will select one bag from them. Okay, it may be bag 1 or it may be bag 2. So you will take E1 bag 1 selected. E1 be the event, bag 1 is selected, and E2 be the event, bag 2 is bag 2 selected. Then what they have given, one ball is, if you have selected bag 1, what is there? 3 red 4 black. If you have selected bag 2, what is there? 5 red 6 black. So this is your diagram how you are going to work. Then you have drawn, one ball is drawn at random from one of the bag. अब इनमें से जो select हुआ है उसमें से एक बॉल निकाली गई और वो बॉल कैसी निकली? फाउंड टू बी रेड. सो योर ए इवेंट इज रेड बॉल ड्रॉन. And what you have to find the probability that it was drawn from bag 2. Bag 2 is here, so you have to find that this ball is drawn from bag 2. Find the probability of bag 2 when your found ball is red. So what you have to find the probability of bag 2 when you have drawn the red ball like this. And what is this? This is conditional probability, and you use the formula of Bayes theorem and you will find this. Okay, how to find, how and what is the formula? Formula is like, if this is E2, E2 will be on the numerator, probability of A when E2 has occurred, and in division total probability. And what is the formula of total probability? You can write it here also. What is total probability? E1 probability of A when E1 has occurred plus probability of E2 probability of A when E2 has occurred. You have 2 events, so you will write only for E1 and E2. Now find probability of E2. If you have 2 bags, what is the probability of E2? 1 by 2. If you have 2 bags, here is your E1 and here is your E2. The probability of E2 is 1 by 2, E1 is 1 by 2. Now find probability of A when E1 has happened. Probability of A means red ball probability when bag 1 selected. Bag 1 has 3 red, so 3 by 7. Now probability of A when E2 has happened means bag 2 is selected, it has 5 red, so 5 by 11. So how to find the answer? Put values in the formula. 1 by 2 multiply A when E2 has occurred, 5 by 11, divide by 1 by 2 3 by 7 plus 1 by 2 5 by 11. Now you can solve it. Just take the LCM and get the answer. I think you will do it. Okay. Next question. Let us discuss next question. Given 3 identical boxes, 1 2 3, each containing 2 coins. In box 1 both coins are gold. Okay, let us start. You have 3 types of boxes, 1 2 3. In box 1 you have, both coins are gold coins, means 2 coins हैं, दोनों के दोनों गोल्ड हैं भाई साहब. उसके बाद गोल्ड 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 बहुत महंगा हो रहा है यार गोल्ड.
सबको गोल्ड गोल्ड हो रही है ना, गोल्ड गोल्ड। चलो इन बॉक्स 2 सिल्वर कॉइन, सिल्वर भी बहुत महंगा हो रहा है, दोनों के दोनों सिल्वर है। उसके बाद इन बॉक्स 3 देयर इज़ 1 गोल्ड एंड 1 सिल्वर। वाह भाई वाह, मज़े हो गए। बस एक गोल्ड का सिक्का मिल जाए, एक सिल्वर का मिल जाए, मज़े ही मज़े, है ना। चलो शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को। आगे क्या बोला, कहता है ये देयर इज़ 1 गोल्डन, ये हो गया डन। अ पर्सन चूजेज अ बॉक्स, फर्स्ट तो आपको क्या चूज़ करना है, एक बॉक्स चूज़ करना है। एंड टेक्स आउट अ कॉइन, एक कॉइन निकालना है। इफ़ द कॉइन इज़ ऑफ गोल्ड, ये है इफ़ जो मतलब हो चुका है, यानी कि जो ए है, जो कॉइन है वो आपका, वो कौन मिला, गोल्ड मिला, कॉइन ऑफ गोल्ड। उसके बाद व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट अदर कॉइन इन द बॉक्स इज ऑल्सो गोल्ड। अरे भाई साहब, घुमा के क्वेश्चन पूछ लिया ना। अभी देखो इसको कैसे करेंगे। पहले मैं क्या लिखता हूँ, E1 एक इवेंट लिखता हूँ, बैग 1 या बॉक्स 1, यू कैन राइट बॉक्स इफ यू हैव बॉक्स 1 selected, E2 is box 2 selected, E3 is box 3 selected. Got it? In box 1 what you have, 2 gold. In box 2 what you have, 2 silver. And in box 3 what you have, 1 gold 1 silver. It is saying that आपको बोल रहा है बच्चों की कॉइन गोल्ड का है, प्रोबेबिलिटी बताओ किसकी, जो अदर कॉइन है बॉक्स में। देखो सब में 2-2 हैं, हाँ बिल्कुल हैं सर। कहता है एक तो आपने निकाल लिया और वो कौन सा आ गया, गोल्ड आ गया। कहता है जो बच गया ना, अदर कॉइन जो बच गया वो भी कौन सा होना चाहिए, गोल्ड। इसकी प्रोबेबिलिटी बताओ। तो अगर आप यहाँ से गोल्ड निकाल ही नहीं सकते, यहाँ से तो आएगा ही नहीं। यहाँ से अगर आप गोल्ड निकाल लोगे तो एक सिल्वर बचेगा, ये भी नहीं पूछ रहा। इसका मतलब ये पूछ रहा है आपसे, कहता है भाई साहब E1 की प्रोबेबिलिटी बताओ कि जब ए हैज़ हैपन्ड तो आपके पास क्या फॉर्मूला बनेगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 व्हेन ए हैज़ अकर्ड, फॉर्मूला लगा दो, E1 प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, नीचे टोटल प्रोबेबिलिटी और वैल्यूज़ पुट कर दो इधर। बेटा वो भी लिखना है हमने, क्या लिखना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन E1 हैज़ अकर्ड, और इधर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन E1 हैज़ अकर्ड प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन E2 हैज़ अकर्ड प्लस प्रोबेबिलिटी E3, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन E3 हैज़ अकर्ड। वैल्यूज़ पुट करेंगे, आंसर आ जाएगा। अच्छा प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 बोल दो क्या होगा। 3 बैग हैं, एक सेलेक्ट करना है तो क्या होगी प्रोबेबिलिटी, 1/3। प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 भी क्या होगी, इक्वली लाइकली है ना, कोई भी बैग सेलेक्ट हो सकता है तो 1/3। प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 भी क्या हो जाएगी, 1/3। तो ये आपका डायग्राम बन गया ऐसे। इधर से आपको प्रोसीड करना है, यहाँ पे चले गए आप। अच्छा आप बताओ प्रोबेबिलिटी ऑफ A when E1 has occurred means you have to find that coin of gold, probability of gold when box 1 is selected, and in box 1 what you have, 2 gold. So you are drawing only 1 coin. So if you have 2 gold coins, then what will be the probability of gold coin, it will be 1 because it is श्योर इवेंट। कोई सा भी सिक्का निकाल लो भाई, गोल्ड का ही निकलेगा, और गोल्ड का निकलेगा, श्योर इवेंट हो गई। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब प्रोबेबिलिटी 1 कर देंगे हम। अच्छा E2 सेलेक्ट हो गया, मतलब बैग 2 सेलेक्ट हो गया। अब बताओ गोल्ड निकलेगा क्या इधर से, अरे सर कहाँ से निकलेगा, मजाक कर रहे हो, सिल्वर कॉइन पड़े हैं इसमें। अगर सिल्वर हैं, गोल्ड है ही नहीं, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो गई, 0। नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन E2 हैज़ अकर्ड। अच्छा इधर सर एक गोल्ड है तो ठीक है भाई, एक है तो 1/2 कर देंगे, एक गोल्ड है एक सिल्वर है, गोल्ड की प्रोबेबिलिटी 1/2, वेरी इजी। वैल्यूज़ पुट कर दो भाई साहब, आंसर आ जाएगा 1/3 × 1,
1/3 इंटू 1 प्लस 1/3 इंटू 0 प्लस 1/3 इंटू 1/2। चलो आंसर निकाल सकते हो या निकाल लो? चलो निकाल देते हैं। चलो सॉरी, इसका आंसर हम निकाल देते हैं। ये क्या हो गया, 0 ये ख़त्म, यहाँ बचा 1/6। एलसीएम ले लो नीचे, एलसीएम आ गया 6, यहाँ आ गया 3 2 जा 6, 2 + 1 यानी कि 3, डायरेक्ट 3 लिख दो। ये हो गया 3 2 जा 6, आंसर आ गया 2/3। ये एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, आप इसका आंसर मैंने लिखा नहीं, आप चेक कर लेना आंसर इसका, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। Suppose that the reliability of a HIV test is specified as follows। ये क्वेश्चन है HIV टेस्ट की लैब रिपोर्ट के ऊपर। क्या कहता है, ऑफ पीपल हैविंग HIV। अब दो तरह के लोग हैं जिनको HIV है। अब पहले बात करें जिनको HIV है, हैविंग HIV, 90% ऑफ द टेस्ट डिटेक्ट द डिसीज़। कहते हैं 90% जो टेस्ट होते हैं उनमें से 90% बिल्कुल ठीक आते हैं, मतलब HIV है और डिटेक्ट भी हो गया कि HIV है। नेक्स्ट, बट 10% गो अनडिटेक्टेड। इसका मतलब जिन बंदों को HIV है उनकी 10% की रिपोर्ट ऐसी है जिनमें पता नहीं लग पाता कि HIV है या नहीं है। गॉट इट, ये 10%। उसके बाद ऑफ पीपल फ्री ऑफ HIV, कहता है जिनको HIV नहीं है, जिनको HIV नहीं है, वो जो फ्री है HIV से, ऑफ फ्री ऑफ HIV, ऑफ पीपल फ्री ऑफ HIV। 99% ऑफ द टेस्ट आर जज्ड HIV नेगेटिव। कहता उनको HIV नहीं है और 99% रिपोर्ट जो आई है वो नेगेटिव ही आई है, मतलब ठीक है भाई, उनको नहीं है, नेगेटिव रिपोर्ट आ गई उनको। इसका मतलब आपकी रिपोर्ट बिल्कुल ठीक बताती है। इसका मतलब आपकी रिपोर्ट ठीक कितना बताती है, 99%। और 1% ऐसी है डायग्नोज करती है शोइंग HIV पॉजिटिव। अरे बाप रे बाप भाई साहब, जो बंदा फ्री है HIV से, 1% रिपोर्ट उसको भी क्या दिखा देती है, HIV पॉजिटिव। ये तो गंदी बात है भाई, वो तो डर जाएगा बंदा। नहीं डरेगा नहीं, क्योंकि डॉक्टर्स भी प्रोबेबिलिटी यूज़ करते हैं। वो क्या करते हैं, अगर कुछ ऐसा उन्हें लगता क्या है, अगर किसी को आता है पॉजिटिव तो वो किसी और से भी उसका टेस्ट कराते हैं, दूसरी लैब से, ठीक है। ऐसे नहीं डायरेक्ट डिक्लेयर कर देते लो भाई तुम्हें तो HIV हो गया, नहीं, उनको भी पता है कि मशीन से कई बार ये 1% वाला कांड हो जाता है। ओके, तो नेक्स्ट क्या है, अभी हमें प्रोबेबिलिटी सॉल्व करना है भाई, HIV पे डिस्कस नहीं करना है। ओके, फ्रॉम अ लार्ज पॉपुलेशन ऑफ विच ओनली 0.1% हैव HIV। अब क्या बता रहा है भाई साहब, जो आपकी जनसंख्या है उसमें से ये 0.1% को HIV है भाई साहब, इतने बंदों को है। ओके, और उन बंदों में से एक बंदा सेलेक्ट करा, जो इतने सारे बंदे थे ना, ये फ्रॉम लार्ज पॉपुलेशन, इस पॉपुलेशन में से एक बंदा सेलेक्ट कर लिया। गिवन, ये गिवन बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये बेस थ्योरम और टोटल प्रोबेबिलिटी, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, इनमें ना आपका ये गिवन बड़ा इंपॉर्टेंट है। जहाँ भी गिवन के बाद एक प्रोबेबिलिटी निकालने को पूछेगा ना, तो भाई साहब कंडीशनल प्रोबेबिलिटी लगेगी, और हो सकता है वो सिंपल कंडीशनल हो या फिर बेस थ्योरम हो। तो इधर आ गया गिवन कहता है HIV टेस्ट पॉजिटिव, गिवन द HIV टेस्ट एंड द पैथोलॉजिस्ट रिपोर्ट एज HIV पॉजिटिव। कहता है आपकी रिपोर्ट क्या आ गई है, पॉजिटिव आ गई है। तो ये जो लास्ट में होती है ना, ये क्या बोल रही है, HIV रिपोर्ट पॉजिटिव आ गई भाई साहब। आपको क्या निकालना है, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट पर्सन एक्चुअली हैज़ HIV। बेस थ्योरम बन गई भाई साहब, मतलब पीछे जा रहे हो आप। हो सकता है कि बंदे को HIV हो, एक्चुअली, यहाँ लिखते हैं एक्चुअली हैज़ HIV,
और E2 do not have HIV। क्लियर? ठीक है, ये क्वेश्चन बन गया। अब आपको निकालना क्या है, कहता है एक्चुअली हैज़, मतलब E1 का प्रोबेबिलिटी निकालना है व्हेन A हैज़ अकर्ड। क्लियर है मेरी बात? ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 बताओ पहले तो। अब ढूंढना है भाई ऊपर से। कहता है एक्चुअली हैज़ HIV, इसका प्रोबेबिलिटी क्या होगा? अभी अभी उसने बोला था एक्चुअली वाला, ये रहा। ए लार्ज पॉपुलेशन ऑफ विच ओनली 0.1% हैव HIV, बोला है ना, तो 0.1%, इसका मीनिंग क्या होता है? 1/1000। अच्छा, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 कहता है डू नॉट हैव HIV, जितनों को HIV है 1 में से माइनस कर दो भाई साहब, आ जाएगा 999 डिवाइड बाय 1000, हो गया। नेक्स्ट, अभी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के लिए आपको क्या चाहिए? टोटल प्रोबेबिलिटी के लिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन E1 हैज़ अकर्ड। अब इसका मीनिंग समझो क्या है। ए बोले तो HIV रिपोर्ट पॉजिटिव, व्हेन E1 हैज़ अकर्ड, E1 इज व्हाट? एक्चुअली हैज़ HIV। कहता है रिपोर्ट पॉजिटिव आई है और असली में एक्चुअली में उसको HIV है। इसकी प्रोबेबिलिटी बताओ, ढूंढो इधर से। आप यहाँ शुरू से चले जाओ। कहता है 90% ऑफ द टेस्ट डिटेक्ट द डिसीज़। इसका मतलब क्या है? जिनको है HIV, कहाँ गया वो? हाँ, ऑफ पीपल हैविंग HIV, जिनको है, देखो एक्चुअली में है, और 90% डिटेक्ट द डिसीज़, 90% उसकी रिपोर्ट सही आ रही है। इसका मतलब रिपोर्ट भी पॉजिटिव आ रही है, एक्चुअली में है वो कितने हैं? 90/100। नेक्स्ट, अब क्या चाहिए? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन E2 हैज़ अकर्ड। कहता है HIV रिपोर्ट पॉजिटिव आ गई, लेकिन उसको है नहीं HIV, डू नॉट हैव HIV। E2 है ना, E2, इस E2 क्या है? डू नॉट हैव HIV, लेकिन रिपोर्ट पॉजिटिव आ गई। तो इसमें क्या करेंगे? इसमें क्या करेंगे? कहता है HIV नहीं है, ऑफ पीपल फ्री ऑफ HIV है नहीं, लेकिन रिपोर्ट गलत आई है। ये वाली रिपोर्ट तो ठीक वाली है, ये रही, ये 1% जो है ये गलत वाली है कि, तो है ही नहीं, फ्री है भाई साहब बंदा, तो HIV उसको है ही नहीं। तो इसका मतलब क्या हुआ? रिपोर्ट ही गलत है हमारी, हाँ या ना? रिपोर्ट गलत है, कितने परसेंट? 1%, 1/100, हाँ या ना? मेरी बात समझ में आ गई ना? अब फॉर्मूले में वैल्यू पुट करते जाओ चुपचाप, किसी को बताना नहीं, और आपका आंसर आ जाएगा भाई साहब। भाइयों और बहनों, आपका आंसर आ जाएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, प्रोबेबिलिटी ऑफ A व्हेन E1 हैज़ अकर्ड, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2, प्रोबेबिलिटी ऑफ A व्हेन E2 हैज़ अकर्ड। भाई साहब, आपने एग्ज़ाम में प्रॉपर फॉर्मूला लिखना है, और ये E1 ये E2 ये अलग से आप लिख सकते हो, आपकी मर्ज़ी है। आप डायग्राम ऐसे डायग्राम बना बना के करेंगे तो भी चलेगा, और आप प्रॉपर लिख के करेंगे तो भी चलेगा, लेकिन फॉर्मूला लिखना मत भूलना। फॉर्मूला बहुत ज़रूरी है। आपके क्वेश्चन में कुछ थोड़ी बहुत मिस्टेक भी हो गई तो फॉर्मूला आपको नंबर दिलाएगा। फॉर्मूला आपको आपके एग्जामिनर को बताएगा कि इस बच्चे को पता है ये क्वेश्चन कैसे होना है। ठीक है, तो वैल्यू पुट करते हैं। E1 का प्रोबेबिलिटी 1/1000 मल्टीप्लाई, ये है आपका 90/100, और इधर 1/1000 90/100 प्लस 999 डिवाइड बाय 1000 मल्टीप्लाई 1/100। क्लियर है? वैल्यूज़ इसको सॉल्व कर दो भाई। देखो LCM लोगे जब, ये नीचे 5 जीरो हैं, इधर भी 5 जीरो हैं, इधर भी 5 जीरो, जब LCM लोगे तब कैंसिल होगा ये। ऐसे मत उड़ा देना डायरेक्ट कि सर ने बोला था उड़ा दो, नहीं, मैं पूरा करके दिखा रहा हूँ आपको, देख लो ध्यान से। अब नीचे क्या है? LCM लोगे, कितनी जीरो हैं? 5, इधर कितना है? 90, इधर कितना है? 999। तो भाई साहब ये अब कैंसिल होगा।
और ये कितना बच गया 9, 9 और 9 18, 9 और 1 10। ये कैंसिल हो जाएगा किसी पे तो। 9 एकम 9 दूनी 18, 9 पे कैंसिल हो रहे हैं। 9 1 जा 9, 9 दूनी 18, 9 1 जा 9, 10/121 आंसर। मुझे लगता है आपको ये समझ में आ गया है ना। गुड, आना भी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी हमारे पास क्या है, ए कार्ड फ्रॉम पैक ऑफ 52 कार्ड इज लॉस्ट फ्रॉम द रिमेनिंग कार्ड ऑफ द पैक। अच्छा भाई पहले ये देख लो 52 कार्ड थे, उनमें से एक गुम हो गया, ठीक है, कर दो, गुम कर दो, कोई दिक्कत नहीं, गुम कर दो या निकाल के फेंक दो, एक ही बात है। फ्रॉम द रिमेनिंग कार्ड ऑफ पैक 2 कार्ड्स आर ड्रॉन, और जो बच गए उनमें से कितने निकाले भाई, 2 निकाले। एंड आर फाउंड टू बी बोथ डायमंड, कहता है दोनों कैसे निकले, फाउंड टू बी डायमंड, यहीं से काम शुरू हो गया भाई। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द लॉस्ट कार्ड बीइंग आ डायमंड, कहता है जो कार्ड गुम हुआ उसकी प्रोबेबिलिटी बताओ। मतलब एक काम तो कह रहा है फाउंड टू बी, मतलब जो यहाँ हो चुका है, क्या मिला, बोथ डायमंड मिल गए आपको लास्ट में। अरे वाह वाह, डायमंड मिल गए। अरे नहीं सर, कार्ड मिले, डायमंड कार्ड्स, ओके ओके इट्स ओके। तो E1 क्या हो सकता है और E2 क्या हो सकता है। अब ये कार्ड गुम हुए हैं, यहाँ से देखो, यहाँ से लास्ट में कैसे मिले, बोथ डायमंड, और प्रोबेबिलिटी किसकी पूछी, लॉस्ट कार्ड बीइंग अ डायमंड, मतलब पीछे जाना है और ढूंढना है कि कार्ड कौन सा गुम हुआ था। तो E1 आप ले सकते हो लॉस्ट डायमंड, और E2 को ले सकते हो नॉट डायमंड, लॉस्ट डायमंड इज लॉस्ट, यहाँ लिखते हैं डायमंड इज लॉस्ट, डायमंड इज लॉस्ट, और यहाँ लिख देते हैं हम क्या, इसको हम भगा देते हैं, डायमंड इज नॉट लॉस्ट, नॉट लॉस्ट। ओके ब्रो, ओके बच्चों, ठीक है। चलो भाई अब क्या करो, अब एक एक करके काम करना शुरू करो। आपको चाहिए क्या, कहता है जो लॉस्ट कार्ड है वो डायमंड था, डायमंड किधर है, डायमंड इज लॉस्ट, इसका मतलब E1 का प्रोबेबिलिटी चाहिए, E1 का चाहिए। और क्या कहता है, क्या हो चुका है, क्या हो चुका है, फाउंड टू बी बोथ डायमंड, डायमंड कौन है, ए, मतलब ए हो चुका है। तो बस काम ख़त्म कर दोगे आप, मुझे पता है, फॉर्मूला आपको याद हो गया, बड़ा इजी फॉर्मूला है। नीचे टोटल प्रोबेबिलिटी आती है जो कि आपको अच्छे से निकालनी आती है। चलो भाई अब कुछ नहीं करना भाई, वैल्यू ढूंढनी है, E1 निकालना है पहले, E1 बोले तो डायमंड इज लॉस्ट, डायमंड लॉस्ट मतलब भाई साहब आपने कार्ड निकाला 52 में से, फिर फेंक दिया, तो फेंक दिया मतलब गुम हो गया, और गुम हो गया वो कार्ड, तो उसकी प्रोबेबिलिटी बताओ। डायमंड कितने होते हैं, 13 होते हैं सर। टोटल कितने होते हैं सर, 52, तो आ गई प्रोबेबिलिटी, ईजी। कहते हैं फिर E2 की भी बता दो। ओके E2 की भी बता देते हैं सर। डायमंड नहीं है वो, कितने बचे सर, 39 बच गए हैं। ठीक है भाई, मिल गई 39/52। अब कहता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन E1 हैज़ अकर्ड नाउ। अब आपके पास कितने कार्ड बच गए, एक कार्ड गुम हो गया तो 51 कार्ड बचे, यहाँ भी एक कार्ड गुम हो गया 51 कार्ड बचे। अच्छा यहाँ पे डायमंड लॉस्ट हुआ है, तो भाई साहब डायमंड कितने बचे, 12, कितने निकाल लें आपने, 2, बहुत, जब 2 कार्ड निकालते हैं तो सी वाला कॉम्बिनेशन वाला फॉर्मूला, और टोटल कितने हैं अभी आपके पास, 51, C2, टोटल 2 निकालने हैं। अब इधर आ जाओ, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन E2 हैज़ अकर्ड। अच्छा इधर भी 51 कार्ड बचे हुए हैं, लेकिन डायमंड नहीं घुमा, इसका मतलब डायमंड कितने हैं, डायमंड कितने हैं भाई साहब, डायमंड उतने ही है 13, तो 13C2 डिवाइड बाय टोटल कार्ड 15C2, easy। now just put the values in the formula and you will get answer। 13 divided by 52
मल्टीप्लाई 12C2 डिवाइड बाय 51C2, नीचे सेम 13/52, 12C2, 51C2। एक और मेरे से गोल्डन टिप ले लो आप, आज गोल्ड गोल्ड हो रहा है भाई साहब, गोल्डन टिप दे दूँ। गोल्डन टिप क्या है, शायद पहले भी बताया हो मैंने आपको। गोल्डन टिप ये है भाई साहब, कुछ भी कैंसिल नहीं करना, इधर पे इधर पे इधर पे इधर पे कुछ भी कैंसिल नहीं करना। क्यों नहीं करना, कैलकुलेशन इजी बनाना है हमने। अभी देखना आपको कैलकुलेशन इजी मिलेगी बिल्कुल। कैसे मिलेगी देखते हैं सर, कैसे मिलेगी दिखाओ। 13C2 डिवाइड बाय 51C2। चलो, अब जो फॉर्मूला मैंने आपको समझाया था, इसको क्या उठा सकता हूँ? नहीं, इस थैंक यू को नहीं उठा सकते, कोई बात नहीं, ऐसे ही कर देंगे। अच्छा, मैंने एक फॉर्मूला सिखाया था आपको कि मुझे बताओ एलसीएम ऊपर, एलसीएम नीचे लोगे तो क्या आएगा, 52 51C2, सेम है ना, सेम आएगा। और ये वाला जो है ऊपर भी क्या है, 52 51C2। तो भाई साहब ये कैंसिल हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, बताओ मुझे। हो जाएगा, बिल्कुल ठीक है। अब सॉल्व करने का काम किसका बचा है, ये 13 का। और ये 12C2 क्या हो जाएगा, 12 × 11, हाँ या ना, और डिवाइड बाय 2 का फैक्टोरियल। C2 होता है तो 2 टाइम्स ओपन कर दो 12 को, 12 × 11 डिवाइड बाय 2 का फैक्टोरियल ओपन कर दो। नीचे क्या बचेगा, 13 × 12 × 11 और फिर से डिवाइड बाय 2 प्लस 39 × 13 × 12 और डिवाइड बाय फिर से 2। ठीक है भाई, अब देखो ध्यान से। ठीक है, आप ये डन। अब यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, ये 2 भी कैंसिल हो गया, डन। उसके बाद ऊपर क्या बचा, 13 × 12 × 11। नीचे क्या बचा है, 13 × 12 × 11 प्लस 39 × 13 × 12। अब आपके पास एक बहुत बेहतरीन सा मेथड हो सकता है, अप्लाई कर दीजिए। नीचे 13 और 12 कॉमन ले लो, बचा क्या, 11 प्लस 39। 13 और 12 उड़ गया, ये कितना हो गया, 9 और 1 10 50, तो 11 डिवाइड बाय 50, ये आंसर आ गया आपका। देखा, तो ऊपर कैलकुलेशन करने की बजाय भाई साहब यहाँ से शुरू करो कैलकुलेशंस, यहाँ काटना, इजी बनाओ क्वेश्चन को। सो थैंक यू सो मच बच्चों, उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चंस समझ में आए होंगे। अब आपको कोई भी डाउट लगे, कोई क्वेश्चन ऐसा लगे तो आप भेजो मुझे, सॉल्व करेंगे, मज़ा आएगा, इजी बनाएंगे क्वेश्चंस को। ओके, थैंक यू सो मच बच्चों, थैंक यू।